Hello, my dear aspirants, and welcome to Koshika. I am Dr. Mansi Tripathi, and I've done my MTech and PhD in Environmental Management from IIT Roorkee. This is my endeavor to start a coaching in which I can provide whatever knowledge I have gained throughout the years related to biology and life sciences. So, not taking much of your important time, I'll tell you about the main motive which I have behind creating this video. Through this video, I want to take you through a journey of your NEET preparation in which I will be your mentor and I will help you to gain insights into the language of NCERT, which is so called coded, so that we can together interpret this knowledge and get through our NEET exam. Without waiting much, I'll tell you how I'll cruise through the entire NCERT. Through this period, we will cover each and every chapter of our NCERTs. We'll go through it line by line. We will cover every possible MCQ which has existed, which is there in our previous year papers, and we will also go through all the questions which are at the end of paragraphs, which we often we tend to leave them, but we will cover all of them as well. We'll cover the questions given at the back of the NCERTs, we'll cover the exemplars as and when required, and last but not the least, we will cover all the previous year's question papers after completing all the chapters. So without waiting much, let's get started. The first chapter which we have is the living world. Now, there's a very simple question which has been portrayed in this chapter as: what is biology? Why are we studying it? And what is life? What is living? See, throughout I will keep telling you about the philosophy behind learning each chapter, but at the same time I will also specifically point out, especially for the freshers, it will be very beneficial that I'll specifically point out what kind of questions are asked from this specific chapter, right? So that whenever you are reading the NCERTs yourself, you can also yourself analyze how to read the chapter, how to decode NCERT, so that you can do that even yourself, and I'll be there to help you at the same time. Okay, so see, the thumb rule is you have to mark the words which you consider are important from MCQ point of views. For example, NCERT mentions that biology is a study of life forms and life processes. First thing, it's a study of life forms plus life processes, right? So life forms, here it means everything which comes under plant kingdom, animal kingdom, fungus, algae, everything on the earth, right? Anything that has life. But again comes the fundamental question: what is life? So this question mainly focuses on the MCQs in which we are supposed to keep track of each and every example given in this chapter, and at the same time we have to keep track about what according to NCERT is life, right? So what is life or what is living? Let's take a few examples. Maybe something that grows is life. Okay, we'll check. Something that reproduces, I think it has life. Anything that has cellular structure, right? And anything that can metabolize, okay? And what else? Maybe something that is conscious or can respond to stimuli. Fine. Okay, now see, the point is we have to identify which out of these points are the points which are unique and distinctive to living. The key word here is unique and distinctive.
See, it simply means something which is present only and only in living forms. Anything that is inanimate can never possess these qualities, right? So let us consider all of these. First we'll do superficially, and then one by one we will consider each and every point. Okay, there are things which grow but are not living. Okay, when we'll take growth in detail, at that time we'll discuss. Same goes with reproduction. There are many people, in fact, in human beings there are couples who cannot reproduce, and at the same time there are even animals which cannot reproduce, which are sterile in nature. At the same time, cellular structure, well, cellular structure is a unique and distinctive feature of the living, because without anything being bound in the form of cells, it just cannot continue its life processes, right? Which is the next point, that is metabolism. If there is a life, the life has to go on, it has to continue, it has to prepare food or obtain food from somewhere, it has to metabolize that food, use the energy and do its regular functions. So metabolism is also a unique feature, and at the same time there is consciousness. If I am living, then I will respond to stimuli. That's but obvious, right? So let's take each of these one by one separately, right? Okay. Let's get rid of this too. Fine. Okay. Number one is growth. Okay. Now let's see about growth. Growth can be growth in mass or growth in number, right? Growth in mass and growth in number, these are the twin characteristics of growth. So if there's an MCQ which says which are the twin characteristics of growth, then it's growth in mass and growth in number. Okay, there's one more thing that I would like to point out. See, there are times where there are some certain questions which if you otherwise see, then you may find that other options are also possible, right? Like for example, in general, if I see this statement, twin characteristics of growth, right? So I may consider other things to be also representative of twin characteristics of growth, right? Beyond growth in number and growth in mass. But the point is कि whatever options are there, we have to mark not just the correct, the most correct option, right? And it is a thumb rule. Henceforth, if you are preparing for NEET, it is a thumb rule. Whatever is written in NCERT is most correct, right? See, at least you have to be very sure that you are not there to do PhD, you are not there to do your masters in NCERT, but you have to crack this exam. And for cracking this exam, you have to get through good marks, and for good marks, you have to accept it. Whatever is written in NCERT, that is the mother of all other forms of knowledge or all other sources of knowledge, right? So अगर NCERT में if there's something which is wrong even, still अगर question में आता है, then you have to mark whatever is written in NCERT, right? So if there is a question which says what are the twin characteristics of growth, so we have to say कि it is mass, in growth in mass and growth in numbers, right? Okay. Now beyond this, growth can also be determinate, sorry, it is determinate or indeterminate. ठीक है, तो we'll take them one by one. Okay. Now growth in mass and growth in
number. Let's consider mass. Growth in mass is possible for the living and non-living. ठीक. Okay. So okay. You must be knowing, अगर थोड़ा सा भी सी न्यूज़ का थोड़ा सा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस, कई सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं न्यूज़ से रिलेटेड बातों से भी हमें पता चल जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता होगा ना, अगर थोड़ा भी अपडेटेड रहते हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि रिसेंटली माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको रिवाइज़ किया गया है. भाई माउंटेन है, नॉन लिविंग है, तो उसकी हाइट क्यों रिवाइज़ करी? वो कोई बच्चा है क्या जो हर साल बढ़ेगा? नहीं, नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी वो ग्रो करता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ जो होती है ना वो बेसिकली सेल्स के मल्टीप्लिकेशन से नहीं होती है. वो इसलिए होती है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन लिविंग चीज़ों की विदरिंग और उनके ऊपर डिपोजिशन के लिए. और इसी वजह से जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट्स कम या ज़्यादा होती रहती हैं. हमने देखा होगा ना कि अगर बहुत दिनों तक डस्टिंग नहीं करते हम अपनी टेबल की और किताबें फैली रहती हैं तो उसके ऊपर धूल की लेयर जम जाती है ना, तो बेसिकली वहाँ पे ग्रोथ ही तो हुई मास की. पहले वो फ्लैट सरफेस था, अब उसके ऊपर धूल की लेयर जम गई तो उसकी हाइट बढ़ रही है ना. हाइट बढ़ रही है इसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ तो हो ही रही है ना. हाइट बढ़ना ग्रोथ का भी तो एक सिग्नल है. सो जब नॉन लिविंग चीज़ें हमें अपीयर करती हैं कि वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है, दे अपीयर टू ग्रो, ठीक है. इन दैट केस द प्रोसेस इज नोन एज ACCRETION, एक्रेशन, ठीक है. और जब लिविंग थिंग्स मास में ग्रो कर रही हैं तब तो ग्रो करती ही है ना, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने ये नोटिस किया कि मैंने ये कहा कि उसके ऊपर धूल की लेयर जम जाती है. मैंने ये तो नहीं कहा ना कि टेबल के अंदर धूल की लेयर जम जाती है जिसकी वजह से टेबल बड़ी हो जाती है, नहीं ना. तो जनरली जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना उनके ऊपर से ग्रोथ होती है, मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है. और इसे कोई भी चीज़ एक्सटर्नल हो, राइट, सो इसे हम क्या कहेंगे? ये होगी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. एक्सट्रिंसिक, ठीक. एक्सट्रिंसिक में एक्सटर्नल नाम में ही है, इसका मतलब बाहरी ग्रोथ है, राइट. और जब हम लिविंग की बात कर रहे हैं तो इट इज़ इंट्रिंसिक, यानी कि फ्रॉम विद इन. इंट्रिंसिक, अंदर से, फ्रॉम विद इन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसके नाम में ही है, ठीक है. ओके, अब हम आते हैं ग्रोथ इन नंबर्स पे. आ जाओ, ग्रोथ इन नंबर्स पे, ठीक. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है. देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें काइंड ऑफ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो एक ही बात हुई ना भाई. अगर एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो गए, हम यहाँ पे नंबर ऑफ किसी भी चीज़ के नंबर बढ़ने की बात करें ना, सो अगर एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल्स बन गए, अमीबा को ही ले लो, तो हम क्या कहेंगे? अमीबा ने ग्रो किया क्योंकि इसकी सेल्स मल्टीप्लाई करी, या अमीबा ने रिप्रोड्यूस किया क्योंकि इसकी सेल्स मल्टीप्लाई करी? तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट. सो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम, है ना. ओके. फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर में हम क्या कह सकते हैं? लेट्स टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स सेपरेटली, ठीक है. चलो देखो, प्लांट्स जो होते हैं वो एक तरीके से लाइफ लॉन्ग ग्रो करते हैं, ठीक है. मतलब जितना भी उनका लाइफ स्पैन होता है, अगर कोई प्लांट 100 साल की लाइफ स्पैन लेकर के है, कोई 5 साल की है, किसी की साल भर की ही है, पर जितने भी टाइम की उसकी लाइफ स्पैन है ना,
वो थ्रू आउट अपना लाइफ स्पैन ग्रो करता रहेगा। ठीक है, भाई एक बात बताओ, अगर कोई भी ट्री है जिसकी लाइफ 100 ईयर्स की है, ठीक है, और अगर मान लो वो एक एवरग्रीन ट्री नहीं है, अगर एवरग्रीन है तब भी भाई हमेशा उसमें कंटिन्यूसली नई लीव्स आती रहेंगी, पुरानी लीव्स शेड होती रहेंगी, उसमें फ्रूट्स आएंगे, उसमें फ्लावर्स आएंगे। दैट इज़ ट्रू, वो हमेशा होता रहेगा। जब तक वो ट्री जिंदा है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस और क्या है, ग्रोथ ही तो है। ठीक है, ओके। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में हम कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करते हैं, हम ग्रो करते हैं अप टू अ सर्टेन एज, है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या होता है, एक एज तक हम ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद आती है सेनेसेंस। ग्रोथ इज फॉलोड बाय सेनेसेंस। मतलब कह लो कि ग्रोथ हुई, और ये जो सर्टेन एज है ये कह लो कि हमारी मैच्योरिटी हुई, और उसके बाद सेनेसेंस। और सेनेसेंस का मतलब क्या हुआ, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ठीक है, तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें मतलब ऐसा कुछ भी बहुत खास नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ पे। डिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब ये हुआ ग्रोथ इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, प्लस कह लो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट मतलब अगड़म बगड़म कैसी भी ग्रोथ। ठीक है, कैसी भी ग्रोथ, अगड़म बगड़म कैसी भी। ओके, कह लो कि विदाउट एनी पैटर्न, विदाउट एनी पैटर्न। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल, मेन चीज़ एग्जाम्पल है। ठीक, डिटर्मिनेंट ग्रोथ मतलब मान लो कि जैसे प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में किस टाइप की ग्रोथ होगी, डिटर्मिनेंट होगी कि इनडिटर्मिनेंट होगी, बताओ, सोचो सोचो सोचो। प्लांट्स में इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होगी कि डिटर्मिनेंट ग्रोथ होगी? प्लांट्स में दोनों होगी। ठीक है, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेंट भी होगी और डिटर्मिनेंट ग्रोथ भी होगी। ठीक है, क्यों? डिपेंड करेगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कोई ट्री है, ठीक, इसने एक छोटे से सैपलिंग से बढ़ना शुरू किया, बढ़ते 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 किसी भी स्पेसिफिक टाइप का ट्री है, मान लो मैंगो है। ठीक है, अगर ये मैंगो ट्री है तो ये बढ़ेगा 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 भाई, लेकिन एक पॉइंट तक ही तो अपनी हाइट लेगा ना, एक पॉइंट तक ही तो हाइट लेगा ना। ऐसा थोड़ी कि बढ़ता ही चला जाएगा, नेवर एंडिंग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा चलो, लेकिन जब तक इसकी लाइफ है तब तक इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, और इसीलिए प्लांट्स अपने पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं। ठीक है, इनडेफिनेटली कितना भी लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये इनडेफिनेटली ग्रो भी नहीं करता रहेगा। जब तक कि इसकी एज है तब तक ग्रो करता रहेगा। हाँ, जब ये छोटा था, सैपलिंग था, तो तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा हमें दिखेगा कि हाँ बहुत ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, लेकिन तब भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो टिप है ये यहाँ पे होती है एपिकल मेरिस्टेम, जो एक तरीके से समझ लो कि प्लांट्स की हुई स्टेम सेल, और स्टेम सेल्स तो ग्रो करती ही रहती हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो इसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मान लो इसकी ब्रांच की जो टिप है, ये टिप ग्रो कर रही है, एक ब्रांच की लेंथ बढ़ रही है, तो इस टिप पर भी होगी एपिकल मेरिस्टेम। क्या होगी? एपिकल
मेरिस्टेम। ठीक है, अब मान लो इसी ट्री की एक और ब्रांच है, ठीक, इसकी इस ब्रांच के एंड में है क्या, एक गुलदस्ता। गुलदस्ता माने इनफ्लोरेसेंस। क्या है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। देखा ना, कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक साथ एक क्लस्टर में मिलते हैं, उस क्लस्टर को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो इसकी ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच का जो एंड है इसमें एक इन्फ्लोरेसेंस है। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है भाई, इसका पॉलिनेशन होगा, सबका पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और अल्टीमेटली ये फ्लावर्स जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 4 बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स टंग जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब 4 बढ़िया फ्रूट्स आ जाएंगे उसके बाद क्या क्या कभी देखा है कि ऐसे टिप पर जो है यहाँ पे आम लटका हुआ है और आम के ही बगल से या आम को क्रॉस करती हुई कोई लीफ आ रही है? नहीं देखा है ना, नहीं देखा है ना, क्योंकि नहीं होता है इसलिए नहीं देखा है। तो ये क्योंकि यहाँ पर इस ब्रांच की ग्रोथ का एंड हो गया, तो ये क्या हुई, क्या हुई, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। ठीक है, लेकिन ये अभी बढ़ती ही जा रही है, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक बढ़ती रहेगी। इसकी ग्रोथ कम हो सकती है, धीमी पड़ सकती है, रिसोर्सेज कम है तो हल्की लग सकती है, लेकिन ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो हुई ये हुई क्या, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट। ओके, इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो ये एक ब्रांच तो ग्रो कर ही रही है, हमने फ्लावर्स के साथ या फ्रूट्स के साथ ये होते हुए नहीं देखा, लेकिन तुमने ये तो देखा है ना कि भाई यहाँ पर मैच्योर लीव्स हैं, मैच्योर मतलब जो बहुत डार्क ग्रीन कलर की दिखती है ना वो वाली, और यहाँ पे फिर लाइट ग्रीन वाली आ जाती हैं। और जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि किसी भी ब्रांच का जो टिप होता है उसके आसपास हमें बहुत ही नन्ही सी, थोड़ी येलोइश, थोड़ी लाइट ग्रीनिश वाली लीव्स नहीं दिखती हैं? दिखती है ना, तो उनको देख के हमें क्या पता चलता है, यही तो पता चलता है कि वो अभी नई है, ताज़ी हैं, इसका मतलब फ्रेश ग्रोथ हुई है ना। और जब वो लीव्स मान लो यहाँ से प्लक कर ली गई, लेकिन तब भी यहाँ पे ग्रोथ तो होती ही रहती है ना, होती रहती है ना। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ की इन अस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में, अच्छा डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में या फिर एनिमल्स में इन जनरल जो डिटर्मिनेंट ग्रोथ हुई वो ये हुई कि भाई देखो, हमारा हाथ बॉडी में एक प्रॉपर जगह पे ही ग्रो करता है। ठीक है, पैर एक प्रॉपर जगह ग्रो करता है, नाक कान सब एक प्रॉपर जगह ग्रो करते हैं। अब हाथ की जगह पैर तो नहीं ग्रो करने लगता है ना, तो सब चीज़ें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की ग्रोथ क्या हुई, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। लेकिन बॉडी में जब कहीं रैंडमली ट्यूमर सेल्स डेवलप हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करके लम्प्स बना लेती हैं ना, सेल्स के लम्प्स। और फिर मान लो इन लम्प्स में से कोई सेल ब्रेक हो गई, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होकर के किसी दूसरे ऑर्गन पे अटैक कर दिया, मान लो किडनी पे अटैक कर दिया, तो फिर ये ट्यूमर सेल्स किडनी पे ऐसी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से ग्रो करने लगेंगी, है ना। तो ये क्या हो गई, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, है ना। जैसे अदरक समझ लो ना, अदरक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हुई ना, कैसे भी किधर से भी बढ़ जाती है वैसी। ठीक है, अब इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद मुझे ये बताओ कि क्या ग्रोथ एक इंट्रिंसिक और डिस्टिंक्टिव फैक्टर हुई टू अंडरस्टैंड इफ अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा ना कि नॉन लिविंग में भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग if something is living. Okay, the second point is reproduction. ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। ठीक, अच्छा इसमें रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बीच बीच में से दिए हुए हैं। आई जस्ट कोट द एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स में और अभी इस साल तैयारी में
जो भी अभी फ़िलहाल तुम लोग को करना है उसमें बस वो एग्जाम्पल्स याद रख लो। अगले साल हम उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले साल स्टार्टिंग वाला यूनिट पूरा रिप्रोडक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो उस समय हम उस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो चिंता नहीं करना, उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वी गो टू रिप्रोडक्शन। ठीक, ओके। अब इसमें तो देखो बेसिक डिवीजन क्या, बस यही दो बेसिक डिविजन्स हैं। एक हुआ सेक्सुअल और एक हुआ एसेक्सुअल, है ना, ठीक है। देखो सेक्सुअल जो होता है उसमें मेन पहली चीज़ तो ये है कि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ एन एडवांस कैरेक्टर। तो यूनिसेलुलर में तो होना भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो बेयरली अपने सर्वाइवल के लिए ही चीज़ें जुगाड़ पाते हैं, ठीक है। तो इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फॉर हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड फॉर सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो नई जनरेशन आती है उसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, उनके क्लोन्स नहीं होते हैं। जबकि एसेक्सुअल में जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं और अपने भाई बहनों के भी क्लोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, वैसे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो क्योंकि बोर्ड से तुम्हें 12th में देने हैं, लेकिन हाँ होम एग्ज़ाम के लिए मैं 2-4 तुम लोग को डिफरेंसेस वैसे लिखवा देती हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा जो है एक बार बस देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसी में से हमको अपने होम एग्ज़ाम्स भी देने हैं, अब उसको एकदम आउटराइटली तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको बिल्कुल भी मतलब इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर किया और होम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो भी मोराल बड़ा लूज़ हो जाता है, ठीक है। चलो देखो, एक तो ए सेक्शुअल और सेक्शुअल में पहला तो ये है कि सेक्शुअल जो होता है इट इज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर मल्टी सेलुलर, ठीक है। और ए सेक्शुअल जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोजेनी होता है, ठीक है, वो बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और इस केस में ऑब्वियसली यूनी पेरेंटल हुआ, नाम में ही है ना बाई पेरेंटल और यूनी पेरेंटल का मतलब, राइट। बाई पेरेंटल मतलब जिसके दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स मतलब कि दो जेंडर, दो सेक्स ज़रूरी हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो प्रोजेनी होती है हैज़ वेरिएशंस, ठीक। और इसमें प्योर ब्रीड्स, ओके। वेरिएशंस मतलब कि जो जेनेटिक मेकअप होगा बच्चों का, प्रोजेनी का, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा और अपने भाई बहनों से भी डिफरेंट होगा, ठीक है। और प्योर ब्रीड्स मतलब कि जेनेटिक मेकअप बिल्कुल आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स का भी, उनका। और इसी से हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि नो क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड, एंड इसमें क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड। और क्लोन्स क्या होंगे? दीज आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली कोड्स में आइडेंटिकल, ठीक है, टू पेरेंट्स एंड अदर ऑफस्प्रिंग्स। और यहाँ पे मैंने आइडेंटिकल कहा, आइडेंटिकल, ठीक है, क्योंकि नो क्लोन्स ओनली सिमिलर। भाई हम जब पेरेंट्स सेम हैं तो अल्टीमेटली एक ही जो मदर से डीएनए आया है वो भी वही है, फादर से भी तो वही आया। अब उसका मिक्सअप जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन
सिमिलर तो होंगे ना, हम अपने भाई बहन से सिमिलर तो होते ही ना, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली सिमिलर टू पेरेंट्स, यहाँ पे ये कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को याद रखो, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है, जितने नंबर का है उतने मल्टीपल तुम्हें पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पॉइंट्स इन द सेंस कि कीवर्ड्स। जैसे अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो भाई डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें कम से कम 3 कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अगर डिफरेंसेस का क्वेश्चन है सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस। अगर वो कुछ ऐसा है जिसमें जो है 3 डिफरेंसेस बहुत ही वेग से और सिंपल से डिफरेंसेस है, देन यू हैव टू राइट 6 डिफरेंसेस, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है उसको पहले से एक काइंड ऑफ मिला, एक पैटर्न ऑफ चेकिंग मिला होता है जिसमें उनको कीवर्ड्स मेंशन करके दिए जाते हैं कि लाइक व्हाट डू दे हैव टू लुक इन द आंसर, वरना तो सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। सो उस स्पेसिफिक चीज़ को ले करके वो उन कीवर्ड्स को देख करके ही आंसर मार्क करते हैं और मेक इट ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू फाइंड द कीवर्ड। आप खुद अपने कीवर्ड को अंडरलाइन करो, फालतू में क्लस्टर मत करो, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है अपनी नॉलेज झाड़ने के लिए। एग्जामिनर्स बिल्कुल सरसरी तौर पर स्कैन करते हैं आपका आंसर शीट्स को, राइट, बस आंखों से फटाफट स्कैन करते हैं। जितनी आसानी से उनको कीवर्ड्स मिलते हैं, बिलीव मी, वो उतनी आसानी से और उतने अच्छे से आपको नंबर देते हैं। जितनी उनके लिए आप प्रॉब्लम बढ़ाएंगे उसमें घचर पचर करके 3 नंबर के क्वेश्चन में एक एक पेज लिख दे करके, अगर तुम एग्जामिनर की जगह होगे ना तो सीधे काट दोगे उसे, ठीक है। ये सोचो कि मुझे किस तरीके से ये आंसर चेक करने के लिए आसान बनाना है अपने एग्जामिनर के लिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मार्केट, तुम्हें उसमें 2 पॉइंट्स लिखने होंगे या 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, ये तो है ही है, ठीक है। अब जैसे ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे, तो हम इसमें आराम से एक 2 नंबर का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो हमने कितने सिंपल तरीके से लिख दिया, ठीक। चलो अब चाहो तो इसे आप लोग कॉपी भी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़, यानी अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल्स क्या क्या दे रखे हैं। देखो सेक्सुअल तो सारे मल्टीसेलुलर और हायर ऑर्गेनिजम्स हो ही गए, ठीक है। एसेक्सुअल में जो डिफरेंसेस दे रखे हैं वो क्या क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है वो है क्या, फंजाई, ठीक। फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किस तरीके से, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स बेसिकली छोटे छोटे सिस्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सिस्ट जो होते हैं ना ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट मतलब कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का हार्श एनवायरनमेंट भी आ जाए तब भी ये क्या करते हैं, अपने अंदर ही अंदर, अपने एक तो बाहर एक प्रॉपर बहुत हार्ड कोड बना लेते हैं और अंदर ही अंदर अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही बेयर मिनिमम कर लेते हैं, ठीक है। बेयर मिनिमम करने से क्या है कि इनके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, बहुत ज़रा ज़रा सी कंज्यूम करके जितने दिन तक पॉसिबल है, जब तक वो अनफेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं तब तक बस खींच लेते हैं किसी तरीके से खुद को। जैसी फेवरेबल कंडीशंस आई, बाहर की कोट तोड़ी, जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। फंजाई स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी होता है कि कई सारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो कई मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके आगे एग्जाम्पल देखेंगे। फंजाई इससे करते हैं, और एक हो गया दूसरा बडिंग, ठीक है। बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट और इवन हाइड्रा, पता है ना, हाइड्रा भी करता है बडिंग, ठीक है। ईस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ये पेरेंट ईस्ट है, एक सबस्ट्रेट से अटैच्ड है या चलो मतलब ऐसे ही है, ठीक। ये एक ईस्ट है, जब इसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा ये एक छोटा सा बेबी ईस्ट यहाँ फॉर्म कर लेगी, जो बेबी ईस्ट इससे अटैच रहेगा और इसमें एक बार में एक से ज़्यादा भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगा और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगेगा, सिंपल। यही चीज़ हाइड्रा में होती है। मान लो ये हाइड्रा किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड है, ठीक है। ये हमारा अजीब सा हाइड्रा है ये इसका मुँह है।
जब इसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, अगर बडिंग से करना है इसे, तो ये सिंपली एक छोटा बेबी हाइड्रा यहाँ पर डेवलप कर लेगा। थोड़े टाइम बाद ये बेबी हाइड्रा सेपरेट हो जाएगा और ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नेक्स्ट होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में दो टाइप के रीजेनरेशन होते हैं। एक होता है मॉर्फोलैक्सिस, डबल एल होता है, और एक होता है एपीमॉर्फोसिस। ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखने का मैंने एक तरीका बनाया था। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है क्योंकि इस टाइप के टर्म्स जो होते हैं ना, ये अभी पूरे 2 साल के सिलेबस में दुनिया भर के ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे। ठीक है, सो हाउ टू रिमेंबर। देखो, मॉर्फोलैक्सिस मतलब कि मेजर पार्ट जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है, मेजर बॉडी पार्ट। ठीक है। और एपीमॉर्फोसिस में इक्का दुक्का पार्ट ही रीजनरेट हो पाता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इट विल मेक सेंस। मॉर्फोलैक्सिस हुआ जैसे हाइड्रा, ठीक है, या प्लेनेरिया। एपीमॉर्फोसिस हुई हमारी प्यारी छिपकली। हाइड्रा और प्लेनेरिया में क्या होता है कि मान लो मैं प्लेनेरिया बना रही हूँ, ठीक है, यहीं पे बनाते इसके पास। ये एक प्लेनेरिया है, ये है एक सुंदर सा प्लेनेरिया। ठीक। अच्छा, तुम लोगों को ये पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो काइंड ऑफ इमॉर्टल होते हैं। मतलब उन्हें कोई वरदान नहीं मिला होता है, बट काइंड एक तरीके से इमॉर्टल ही हुए। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका वही जेनेटिक मेकअप जो उनके पता नहीं कितने पुराने रिलेटिव्स के पास था, क्योंकि कोई वेरिएशंस होती नहीं है, इसलिए वही जेनेटिक मेकअप तब से अब तक चलता चला आ रहा है ना। और दूसरी बात क्या होती है कि ज़्यादातर इनमें ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाता है तो वो बॉडी पार्ट जो होता है ना वो एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। और यही बात यहाँ पे होती है। जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा इन दोनों में होता है। मान लो किसी वजह से प्लेनेरिया ऐसे कट के अलग हो गया, बीच में से कट गया, मरेगा नहीं, ये नहीं मरता है। ये क्या करेगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला डेवलप कर लेगा हिस्सा, ठीक है, और इसकी मुंडी अपनी जगह जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या करेगा, ये मुंडी डेवलप कर लेगा। लो, दोनों ही तैयार। और यही वाली कहानी हाइड्रा के साथ भी होती है। ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से इसी चीज़ को हम फ्रैगमेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सब में क्या है कि ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ एक बार कट मारा हो तो ये चीज़ हो गई। ये प्लेनेरिया अगर 3 टुकड़ों में भी कट गया ना तो भाई ये जो बीच का पार्ट है ना ये भी इतना केपेबल होता है कि एक नया प्लेनेरिया इससे भी बन जाए। मतलब ये भी नया बन जाएगा, ये भी नया बन जाएगा, ये भी नया बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्लेनेरिया। और जो दिखाएगा फ्रैगमेंटेशन भी दिखाएगा, रीजेनरेशन भी दिखाएगा। ठीक है। अब हम आएंगे किस पे, फ्रैगमेंटेशन ऑफ क्या, मोसिस। चलो मिटाना क्या, देखो आओ, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में अपना ये हाइड्रा और प्लेनेरिया वगैरह तो हुआ ही, ठीक है। इसके अलावा हो गया प्रोटोनीमा ऑफ फिलामेंटस मोसिस। ठीक है। फंजाई एंड इवन एल्गे। ठीक है। प्रोटोनीमा होता क्या है, पता है क्या होता है प्रोटोनीमा? देखो, मॉस क्या होते हैं देखा है ना हम लोग ने,
मॉसेस जनरली कहीं कहीं चिपकी रहती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी डैम्प सा रहता है, कोई पुरानी सड़ी लकड़ी वगैरह होती है जहाँ पे थोड़ी सी डैम्प है, जहाँ बारिश होती रहती है अक्सर ऐसी जगहों पे जहाँ चीज़ें सड़ती रहती है, वहाँ पे ये मॉसेस वगैरह होते हैं ना। तो जैसे मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है जिस पे कोई मॉस ग्रो कर रही है, ठीक है, मान लो ये कोई मॉस है, ये ग्रो कर रही है सबस्ट्रेट पे। तो जब इसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये क्या करेगी, ये यहाँ से एक अपना ब्रांच टाइप की निकालेगी बिल्कुल सबस्ट्रेट के अलॉन्ग, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसके वो भी होते हैं राइजोइड, एक तरीके से जो इसकी रूट्स होती हैं ना वो राइजोइड्स होती हैं, राइट। और ये जो हुई ये तो इस मॉस की बड हुई, ये ऐसे निकालेगी और अगली बड से फिर एक मॉस आ जाएगी और इसके भी राइजोइड्स डेवलप हो जाएंगे। फिर ये फिर अपना आगे ये ब्रांच टाइप की फेंकेगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी बड, राइट। ये जो ब्रांच होती है ना, इस ब्रांच को कहा जाता है प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। ब्रांच को काट के अलग कर दो, नया मॉसेस में से निकल आएगा, यही फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है। और इसमें आते हैं एग्जाम्पल नोस्टॉक, एनाबीना, और नोस्टॉक, एनाबीना और क्या आते हैं, BAE ना, और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। नोस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरोगाइरा, ठीक। इसमें देखो ये जान लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। अलग से ही बता देती हूँ मैं, है ना। नोस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरोगाइरा। पहले स्पाइरोगाइरा का सुन लो। स्पाइरोगाइरा जो होता है ये एक ग्रीन फंजाई है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है तो मतलब ऑब्वियसली ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ना, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो अपने प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट जैसा नहीं होता है, इसमें रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसको हम और क्या निकनेम्स है, कई सारे निकनेम्स हैं इसका, मरमेड, ट्रेसेस, वाटर सिल्क, है ना, बहुत सारे हैं, ठीक। ये इसके निकनेम्स हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं नोस्टॉक, एनाबीना पे। देखो इसको ध्यान से सुनो क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। नोस्टॉक, एनाबीना जो होते हैं ये होते हैं फिलामेंटस सानोबैक्टीरिया। सानोबैक्टीरिया, स्यान मतलब ब्लू ग्रीन कलर्स के, ब्लू ग्रीन दोनों, सॉरी ब्लू कर दिया, ब्लू और ग्रीन दोनों प्राइमरी कलर्स है ना, तो इन दोनों प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो सेकेंडरी कलर मिलता है ना वो होता है स्यान, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। इसमें स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, हेटेरोसिस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। इसलिए नोस्टॉक, एनाबीना ये दोनों कहाँ यूज होते हैं, ये दोनों एज बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हुए ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, तो जो सॉइल नाइट्रोजन में डिप्लीटेड होगी उसमें अगर इनको छोड़ दो तो सॉइल को ये नाइट्रोजन रिच कर देते हैं, ठीक है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लिखो इसमें, जो हाँ नोस्टॉक और एनाबीना होता है, इसमें जो है
क्रोमैटोफोर्स होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस इसमें होते हैं क्रोमैटोफोर्स। ठीक, अब आओ उसके बाद इसको लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो रिप्रोडक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे इसके आगे। ये तो रिप्रोडक्शन इन सब में हो गया, अब जो है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला देखते हैं। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वाइबल या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो होता है वो तभी डेवलप करता है जब विद इन अ स्पीशीज होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन नेचर में कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन है, या ये समझो, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली विद इन द स्पीशीज़ होता है ऑफ मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। ठीक, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, पहला जो कह लो कि स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, ह्यूमंस में ही ये सब ज़्यादा होता है ना, स्टेरिलिटी वगैरह के इश्यूज। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दे दो। दूसरा एग्जाम्पल हुआ फीमेल वर्कर हनी बीज। ठीक है भाई, इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ऐसा गुनाह ये कर दिया कि इनकी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है। मतलब कि जो फीमेल हनी बीज होती हैं, जो वर्कर बनने के लिए पैदा हुई होती हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी बस वर्क ही करती हैं। उनको उसके अलावा कुछ और करने को ही नहीं मिलता है, उनको रिप्रोड्यूस करने का भी हक नहीं होता है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हनी बी की जो सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम वो सब भी कवर करेंगे, बट फ़िलहाल बस इतना जान लो कि फ़ीमेल वर्कर हनी बीज होती हैं जो स्टेराइल होती हैं। ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। इनमें जो फर्टाइल फीमेल होती है वो होती है क्वीन, और फर्टाइल मेल्स जो होते हैं वो होते हैं ड्रोन्स, है ना। फ़िलहाल बस इतना जान लो, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके आगे हो गया इसके आगे फिर लो एग्जाम्पल किसका, हिन्नी एंड म्यूल्स का। ये भी स्टेराइल होते हैं, हिन्नी और म्यूल्स। हिन्नी कौन होती है? हिन्नी वो होती है जिसके फीमेल डोंकी प्लस मेल हॉर्स का जो क्रॉस से होती है। ठीक है, और म्यूल्स वो होते हैं जहाँ पे फीमेल हॉर्स का क्रॉस होता है किससे? मेल डोंकी से। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ना, ये एक नेचुरल चीज़ होती है। हालांकि विद इन स्पीशीज़ क्रॉस ही होता है, स्पीशीज़ के बाहर क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवन नेचुरली भी ये आपस में क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, बट सी स्पीशीज़ वही होती हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स आपस में क्रॉस करके वायबल ऑफस्प्रिंग्स बना सकें। ठीक है, इनमें नेचर में क्रॉस तो हो जाता है, लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ये ऑफस्प्रिंग्स स्टेराइल होते हैं। ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका, कभी सुना है? टिगोन एंड लाइगर। टिगोन एंड लाइगर सुना है कभी? देखो, टिगोन जो होता है ये क्रॉस होता है एक फीमेल लायन प्लस मेल टाइगर का, राइट। और लाइगर जो होता है ये एक फीमेल टाइगर प्लस मेल लायन का क्रॉस।
ठीक है, ठीक। अच्छा, ये जो है ये नेचुरली क्रॉस नहीं करते हैं, दे आर ब्रेड ओनली इन कैप्टिविटी। नेचर में नहीं होता है लायन और टाइगर का क्रॉस, ठीक है। अब क्योंकि ये कैप्टिविटी में ब्रीड किए जाते हैं, इसलिए इनमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फीमेल थी, इनमें जो फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हुई थी, वो फीमेल्स जो थी वो थी फर्टाइल, लेकिन जो मेल ऑफस्प्रिंग्स ऐसे क्रॉस से ऑब्टेन हुए हैं वो मेल जो थे वो थे स्टेराइल, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये ऑब्वियसली एमसीक्यू बन सकता है इसमें से, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसे याद कैसे रखें कि कैसे बनेगा? देखो, तुम लोग अपना सरनेम पापा से लेते हो ना, तो तुम्हारे नाम में पापा का सरनेम आता है ना, ठीक है। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बट जस्ट इट्स अ वे टू रिमेंबर, ठीक। तो इसके पापा कौन है? इसके पापा है हॉर्स, तो इसका नाम है हिन्नी। एक का याद हो गया तो दूसरे को ऑपोजिट है, ठीक है। और यही देखो, यही चीज़ इसमें भी है। ये टिगोन है ना, यानी इसके पापा कौन होंगे? टाइगर, और इसके पापा कौन होंगे? लायन, ठीक है। आसान है ना याद करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब ये देखने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग एंड ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये स्टेराइल क्यों है? ये सोचा, ये स्टेराइल क्यों है? ये स्टेराइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोसोमल मैचिंग नहीं हो पाती ठीक से। जो हॉर्स होता है और डोंकी होता है, ठीक है, जो डोंकी होता है इसमें 62 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो हॉर्स होते हैं इसमें 64 पेयर्स होते हैं, 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो हिन्नी और म्यूल्स है, इसलिए इनमें बीच के होते हैं और इसमें 63 क्रोमोसोम्स ही आ पाते हैं, ठीक है, इसलिए ये स्टेराइल होता है, ठीक। चलो फिर आते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे, राइट। लेट्स कम टू मेटाबॉलिज्म, ओके। देखो, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है बेसिकली दो चीज़ों से बना हुआ। एक तो हुआ कैटाबॉलिज्म, है ना, और एक हुआ क्या, इसी का उल्टा, एनाबॉलिज्म। ये दोनों चीज़ें मेटाबॉलिज्म का ही हिस्सा हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम एक बड़े से मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में हम कई सारे छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, ठीक। और ये दोनों चीज़ें मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने पर क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी हमें अपने बाकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए इसेंशियल होती है, राइट। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो, कैटाबॉलिज्म में कट होंगी चीज़ें, तो देखो कट हो रही है ना चीज़ें, और इसका उल्टा एनाबॉलिज्म, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे देखो, ये सब चीज़ें तो बॉडी के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली लिविंग बॉडी के अंदर हैं, तो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अब तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक, और हम लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं उसको बाहर लैब में भी कर लेते हैं, ठीक है। भाई देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर तो हम करते ही थे लैब में। पेट्री डिश बनाई, पेट्री डिश के अंदर हमने छोटे छोटे प्लांट टिश्यू कल्चर्स ग्रो किए, और जब थोड़े से बड़े हो गए इनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया फटाफट, और बहुत बढ़िया, इससे हम प्लांट्स के कई सारे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और अब तो आर्टिफिशियल वूम्ब भी आता है, आर्टिफिशियल वूम्ब, ठीक है। फिर वही बात, अगर न्यूज़ में थोड़ा अवेयर रहते होगे तो पता होगा, रिसेंट में एक पूरी की पूरी शीप की जाने गोट को जो है एक आर्टिफिशियल वूम्ब में डेवलप किया गया, मतलब प्लेसेंटा सा एक बनाया गया और उसको आर्टिफिशियली वेंटिलेटर पे रखा गया, और उसको बेसिकली उस प्लेसेंटा
क्रिएट किया गया, वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया, सारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को दिए गए एंड उस आर्टिफिशियल प्लेसेंटा में सबकी आंखों के सामने उस पर्टिकुलर गोट ने मतलब पूरी अपनी एम्ब्रियो की जर्नी कंप्लीट की और वो पैदा हुई, राइट। सो इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सब तो बॉडी के अंदर नहीं हो रही है ना, एंड ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें, पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है, पूरा एक एनिमल ग्रो कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए मेटाबॉलिज्म तो चाहिए ही होगा, पर ये मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के अंदर हो नहीं रहा है, राइट। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या लिविंग का हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के बाहर भी हो रहा है ऐसे केसेस में। तो ये हुआ क्या, लिविंग का एक डिस्टिंक्ट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्या? हाँ, मेटाबॉलिज्म हर केस में डिस्टिंक्ट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग होगा। क्यों? क्योंकि ये सब जब डेवलप हो रहे हैं ना, ये लाइफ है ना, ऐसा नहीं है ना कि ये टेबल चेयर है जो बॉडी के बाहर मेटाबोलाइज कर रहे हैं। अरे इनकी खुद की बॉडी के अंदर तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लैब में एक कोई लाइफ फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिस लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, हम बाहर से ग्रोथ प्रमोटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से ग्रोथ की कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को हम ये कहते हैं कि ये हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। एंड दीज आर नॉट मेटाबॉलिक लाइफ्स। ये मेटाबॉलिक लाइफ्स नहीं है, ये मेटाबॉलिक, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एज अ प्रोसेस नहीं हो, मतलब ये पूरी मेटाबॉलिज्म विद इन अ लाइफ नहीं हो रही है, लेकिन ये एक मेटाबॉलिज्म की इंडिविजुअल प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये हुए कह लो लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग फॉर्म्स, है ना। ये लाइफ को डेवलप करने वाले रिएक्शंस हैं, ठीक है, पर ये लाइफ फॉर्म्स नहीं हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद वील मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ओके, मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। सेलुलर स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात है कि जो उनका इंटायर लिविंग मटेरियल है वो सेल्स में अरेंज्ड है, सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ये भी हुआ एक डिस्टिंक्टिव, है ना, एंड यूनिक टू लिविंग, ठीक है। डिस्टिंक्टिव है और यूनिक भी है फॉर लिविंग। जो कह लो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो कोई सेल्स में थोड़ी अरेंज हो सकती हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से छोटी यूनिट से बनी हो सकती है, पर सेल्स से थोड़ी बनी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझो कि सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं साथ मिल करके? टिश्यूज़, है ना। टिश्यूज़ मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, है ना। और ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। यही तो होती है इनके हायरार्की, है ना। तो बस इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉन्शियसनेस, ठीक। कॉन्शियसनेस या फिर रिस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ठीक। अब जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होगा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। ये स्टिमुलाई जो है, ये स्टिमुलाई कई फॉर्म के हो सकते हैं, राइट। दे कैन बी केमिकल, दे कैन बी बायोलॉजिकल, ठीक है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, pH, इवन पोल्यूटेंट्स, ठीक है। किसी भी टाइप के स्टिमुलाई होंगे
और इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिएक्शंस होंगे वो केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल कैसे भी हो सकते हैं. रिएक्शंस कैन बी केमिकल, बायोलॉजिकल और इवन फिजिकल, है ना. कैसे भी रिएक्शंस हो सकते हैं किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में. केमिकल सिर्फ हम लोग नहीं, मतलब सिर्फ और प्लांट्स, सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी केमिकल्स रिलीज करते हैं. लाइक देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो एलिलोपैथिक केमिकल्स रिलीज करते हैं. ठीक है. और ये जो केमिकल्स होते हैं ये बेसिकली उन प्लांट्स के आसपास दूसरे प्लांट्स को ग्रो होने से प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. अच्छा हाँ, स्टिमुलाई जो है ये कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है ना. जैसे ये जो प्लांट्स मैंने बताए, इन प्लांट्स के केस में क्या हुआ, एक दूसरा प्लांट एक स्टिमुलाई की तरह बिहेव कर रहा है ना, और उसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट वहाँ पे ओरिजिनली है वो क्या करेगा, कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से दूसरे वाले प्लांट को वो सर्वाइव ही नहीं करने देगा, है ना. ठीक है. और इसके साथ जो है एक स्टिमुलाई लाइट. लाइट जो है ये देखो, जैसे हमारे ऊपर जब लाइट फ्लैश होगी, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है कि हम एकदम से हाथ रख लेंगे. ठीक है. आइज़ में चौंध पड़ेगी उससे, और वो ना भी हो, अगर कोई ना ऐसे हाथ रखने दे तो भी जो हमारी प्यूपल्स हैं, ठीक है, ये श्रिंक कर जाएंगी. करेंगे जब तेज़ से रोशनी पड़ेगी तो हमारी प्यूपल श्रिंक कर जाएंगी, है ना. तो ये हमारा नेचुरल रिएक्शन है, राइट. लेकिन प्लांट्स के लिए भी होता है और उसको कहा जाता है फोटो पीरियड. ये वो चीज़ है जहाँ पर लाइट प्लांट्स के लिए एक स्टिमुलाई की तरह बिहेव करती है. ठीक है. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एक मिनिमम टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए होता है सच दैट वो फ्लावर्स बेयर कर सकें. ठीक है. तो वो जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जिसमें उन्हें लाइट एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए होता है, दैट इज़ फोटो पीरियड. ठीक है. दैट इज़ फोटो पीरियड. इसके अलावा एनिमल्स के लिए भी लाइट, इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स के केस में भी जो लाइट होती है वो स्टिमुलाई की तरह बिहेव करती है. क्यों? क्योंकि लाइट उनको ये बताती है कि भाई अब मौसम बदल गया है, अब घर जाओ, अब टाइम आ गया है, अब तुम्हें ब्रीड करना है. ठीक है. दिन छोटा हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है, सो कॉल्ड दिन छोटा दिन बड़ा होता है, अंधेरा हो रहा है, इतनी देर की लाइट है, अब मेरा ब्रीडिंग सीजन आ गया. अब वो तो कैलेंडर पे नहीं मार्क कर सकते हैं ना, तो ये लाइट के चेंजिंग वेरिएशंस की वजह से ही उन्हें पता चलता है कि अब मेरा ब्रीडिंग सीजन आ गया है, या मुझे अब घर जाना है. अब मतलब जो चिड़िया होती है उसको कैसे पता चलता है कि उसका अपने नेस्ट में वापस जाना है, इसी से लाइट के एक्सपोजर से ही पता चलता है. ठीक है. अच्छा, और हाँ, और इसमें एक चीज़ और कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं, यानी ये भी एक डिस्टिंक्टिव और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हुआ लिविंग का. तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो लिविंग होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, लेकिन केवल ह्यूमंस होते हैं जो क्या होते हैं, ओनली ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस. ठीक है. अब सेल्फ कॉन्शियस को तुम फिलोसफिकल तरीके से भी ले सकते हो कि भाई उन्हें अच्छा भला बुरा ये सब पता होता है, और ये भी ले सकते हो कि भाई ह्यूमंस को ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं लंबा लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं. ठीक है. डॉग्स को या किसी जानवर को, किसी पेड़ को थोड़ी फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना. तो दोनों तरीके से लिया जा सकता है इसे, राइट. तो ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस. अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताओ, ये बताओ मुझे कि जो लोग कोमा में होते हैं, ठीक है, उनकी सारी लाइफ की जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं वो तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से हो रही होती हैं, राइट. सांस भी वो वेंटिलेटर की वजह से ले रहे होते हैं, सारी चीज़ें उनके ऐसी ही चल रही होती हैं. ठीक है. तो वो लिविंग होते हैं कि डेड होते हैं? सोच करके बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो कि वो लिविंग होंगे कि डेड होंगे. हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया हुआ है कि वो ब्रेन डेड कहे जाते हैं. ठीक है. ब्रेन डेड कहे जाते हैं, मतलब
कि उनमें कुछ फीचर्स हैं जो लिविंग के हैं और कुछ हैं जो डेड के, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। जैसे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो फिर दिल डाई ना, तो इसीलिए मेटाबॉलिक सिस्टम वाली तो जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाता है। फिर सेलुलर स्ट्रक्चर, तो सेलुलर स्ट्रक्चर है ठीक, लेकिन कॉन्शियसनेस उनमें है। कॉन्शियसनेस तो उनमें कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम रखने के बाद भी नहीं है ना, इसीलिए ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए दे आर नाइदर लिविंग नॉट डेड, दे आर टर्म्ड एज टू बी ब्रेन डेड। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो तब तक। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो चलो इसके साथ इस चैप्टर का ये वाला पार्ट होता है कंक्लूड। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम डे आफ्टर टुमारो मिलते हैं। ठीक है, हम डे आफ्टर टुमारो मिल करके इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उस आगे के पार्ट में हम करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, है ना। देखो जहाँ लाइफ है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उनको नाम देना, उन्हें पहचानना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई और रीज़न से भी। ठीक है, सो वो चीज़ अब हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हो या मुझे कोई अच्छे से टिप्स सजेशंस देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। So I'll see you again. Okay, till then, prepare well, take care, bye bye.